कौन कौन आया? बेटा कौन कौन आया? कोमल? हाँ सर, कोई नहीं है? कॉल की लेकिन कॉल नहीं उठा रही है। बेटा आपका जो प्रोजेक्ट का जो सर्टिफिकेट का पेज है, बरा आप इसमें ही पढ़ो, बरा मोबाइल में ही पढ़ो, बरा एक मिनट सर। क्या क्या लिखा हुआ? दूसरा पेज ही होगा सर्टिफिकेट का। सर रोहिणी का पढ़ रही है। आप पढ़ो। दिस इज टू सर्टिफिकेट दैट इज प्रोजेक्ट, एक मिनट सर, entailed a study of customer satisfaction towards Britannia Company by Rohini Khadse to SNDT University, Women's University, Mumbai, for partially fulfillment of Bachelor of Management Studies is a bona fide original research work carried out under my guidance and supervision. It is a piece of research of a sufficiently high standard to warrantly it a submission to the university for the reward the said degrees. No part of the project has been submitted for any degree or published in any other form. The assistance and the help retained to the research in the form of basic source material and information has been duly acknowledgement. हो गया सर। मेरा मेरा देखो कैसे था। This is to certify that project on title an analytical study of brand image of product of Amul India Private Limited for the year 2015-16, submitted by Gaurav Gajbe in a satisfactory manner as partial fulfillment for the requirement of a degree, Master of Business Administration, submitted to Rashtrasanta Tukaji Maharaj, Nagpur University, Nagpur, for the academic year 2014-15 at Guru Nanak Institute of Engineering and Technology, Nagpur. It is an originally work carried under the supervision and guidance of Dr. Praveen Misre and has undergone the requisite duration of the practical as a prescribed by Rashtrasanta Tukaji Maharaj, Nagpur University, Nagpur for the project work. नीचे प्रोजेक्ट एक साइड में प्रोजेक्ट गाइड का नाम और एक साइड में प्रिंसिपल सर का नाम और नीचे डेट और प्लेस। इस तरीके से बेटा मेरा। अच्छा तीसरा पेज के कौन सा है? एक मिनट सर चेक करती हूँ। एक्नॉलेजमेंट होगा ना? डिक्लेरेशन है सर। इसमें क्या सर? डिक्लेरेशन में पढ़ो।
I hereby declare that this project, a study of customer satisfaction toward Britannia Company, has been submitted as project report in partially fulfillment of Bachelor of Management Studies. The project detail for any part has not been submitted earlier to any institutions for any other degree or diploma. The source of material and data used in this study has been duly acknowledgement and certificate. एक साइड में प्लेस का नाम है नागपुर और एक साइड में रोहिणी का नाम है। नीचे भी रोहिणी के नाम के नीचे बीएमएस नहीं डाला उन्होंने? डाला है सर, बीएमएस फाइनल ईयर, और प्लेस के नीचे डेट मेंशन करना है। पेज कौन सा है? एक्नॉलेजमेंट, थर्ड पेज। ये पढ़ना है सर। पढ़ो। I express my sincerely and hearty guidance to Professor Gaurav Gajbe, my project guide, for giving me an opportunity and support to carry out this project, without whose able guidance this project would never materialize. I was her immediate talks, been keen interest, knowledge, and particular suggestion that inspire me to bring out the best. I grateful acknowledgement my deepest gratitude to Honorable President Srimati Vaishali Phule Madam and Honorable Principal Dr. Atul Tekade Sir for their President's inspiration, conservation, suggestion, and constant encouragement. I also want to thank my friends and my family and all the members who were associated directly or indirectly in making my project successfully. एक साइड प्लेस, उसके नीचे डेट, और एक साइड रोहिणी का नाम, बीएमएस फाइनल ईयर। मेरा देखो कैसे acknowledgement. I take this opportunity to express my sincere thanks to my project guide Dr. Praveen Vise for his support, guidance and encouragement throughout the project, which helped me to complete this project. I am also thankful to Principal Dr. Deshpande and HOD of MBA Department, Professor Jaspal Gidwani. My special thanks to Mr. Prakash Dubey, Assistant Manager, for his effort and inspiration in all the phases of the project work toward the path of completion, many of which have incorporated in the project. I am also grateful to my friend for creating cognitive and atmosphere required for writing the project, and also for the suggestion of given them. Lastly, but not the least, I thankful to my parents for being a constant source of inspiration and for providing me the facilities. ऐसा acknowledgement है। और अच्छा कंटेंट पढ़ो, उसके 1 से लेकर कितने हैं? बेटा कंटेंट पढ़ी? इंडेक्स का पेज पढ़े हो? और इंट्रोडक्शन एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी सर सबसे पहले, उसमें फिर इंट्रोडक्शन, सेकंड कंपनी प्रोफाइल, थर्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी, फोर्थ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फिफ्थ एम एंड ऑब्जेक्टिव, सिक्स स्कोप, सेवेंथ लिमिटेशन एंड एट हाइपोथेसिस। और फिर सेकंड उसमें है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, थर्ड डाटा कलेक्शन, fourth analysis of data and hypothesis testing, fifth conclusion and suggestion, sixth bibliography, and seventh annuary. बराबर है।
हम रिटेल का बचा हुआ पढ़ लेंगे कल से, रोहिणी को बता देना। मैं क्या बोला उमर? हाँ सर। कोई टॉपिक मिला क्या? नहीं नहीं सर, कल जो मिला था वो आपको सेंड की थी। हम्म? बेटा वो टॉपिक तो नहीं चलेगा। बट जो क्यों आपने सर? जो 1 मिनट रुको, वो जो टॉपिक भेजा है आपने, 1 मिनट। इफेक्टिवनेस एनालिसिस है ना, यही है ना? 1 मिनट से मेरा ओपन हो रहा है। सर परफॉर्मेंस अप्राइजल इफेक्टिवनेस एनालिसिस। वो नहीं चलेगा बेटा। बट क्यों सर? नहीं, ये कोई टॉपिक ही नहीं है। ऐसे चाहिए फिर एन एनालिटिकल स्टडी ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एनालिसिस। ठीक है, देखते हुए सर मिलता है कि तो आज। ऐसा चाहिए बेटा, एन एनालिटिकल स्टडी ऑफ परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड इफेक्टिवनेस एनालिसिस। फिर से सुनो, एन एनालिटिकल स्टडी ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल एंड इफेक्टिवनेस एनालिसिस एट चैंपियन वोयागर डिजाइनर्स प्राइवेट लिमिटेड। ऐसा पूरा वो एक सेंटेंस चाहिए। आप ढूंढो बेटा ये, और ये भी नहीं चलेगा, इनकी जो ये कंटेंट्स है वैसे नहीं चाहिए। ठीक है ना सर, देखते हुए मिलता है कि तो आज। हाँ मिल जाएगा बेटा, आप अपने सीनियर से पूछिए कोई अच्छा देते टॉपिक। नहीं सर, देते नहीं सर वो। देते ना देते तो मुझसे बात करो, या फिर मुझे नंबर सेंड करवाना, मेल करने लगा दूंगा मैं आपको, क्योंकि मेरे ठीक पास है ना, मैंने वो अंजलि दीदी को भी बोली थी, प्रियंका दीदी को भी बोली थी, वो बोले वो नहीं है बोले। नहीं, वो उनके पास तो नहीं होगा बेटा। आप अपने सीनियर को पूछो ना, सुपर सीनियर को पूछ रहे ठीक है हो ना सर, पूछती हूँ उनके। आज।
जल्दी से कोई भी एक अच्छा टॉपिक ढूंढिए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। ओके, हाँ सर, ढूंढ तो रही हूँ लेकिन मिल नहीं रहा है कुछ अच्छा। वी हैव सफिशिएंट टाइम, हो जाएगा, वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा कम ज्यादा होगा इधर उधर तो ठीक है। तो ठीक है ना सर, देखती हूँ आज। और ठीक है, अभी हम कल से रिटेल का पढ़ना, बाकी का बचा हुआ पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है ना सर। हम्म। अच्छा, रीना क्यों नहीं आ रही क्लास में? बेटा रीना क्यों नहीं आ रही क्लास में? सर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल ही जा रही है कल से। अरे, एटमोस्फेयर ही वैसा है, वातावरण ही वैसा है। बस हमारा उतना ही टॉपिक बचा हुआ है, बाकी कुछ तो बचा नहीं ना हमारा। रिटेल के सिर्फ 2 ही मॉड्यूल बचे हैं ना हमारे। हाँ सर। वो भी हो जाएंगे, 4-5 लेक्चर में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें भी, फिर हो जाएगा हमारा। कुछ एग्जाम की डेट वगैरह कुछ आई क्या? नहीं सर, अभी तक कुछ तो आइडिया नहीं है। गैप वगैरह कोई मिलती है या रेगुलर पेपर रहते हैं? रेगुलर रहते हैं, ऑनलाइन रहते तो रेगुलर रहते सर। और अब तक आपके पास ग्रेजुएशन की कौन सी मार्कशीट है? और फर्स्ट सेम की, फर्स्ट ईयर की। सेकंड सेम की नहीं है? बाकी कुछ कोई भी सेम की बाकी कोई भी सेम की नहीं है? नहीं। फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेम की है वो भी। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम की है। हम्म। अच्छा, एमबीए कौन से कॉलेज से करना है? सीटी की तारीख नहीं आ गई है ना? नहीं है सर, रोजी सेक्टर एमएसटी सीईटी की आई है, तो वो 12th के बेसिक पे होती है वो वाली। सीटी की नहीं आई है ना? नहीं, रोज ही चेक कर रही हूँ। हाँ, ध्यान देना उस पे, सीटी का फॉर्म भर देना, लगे तो हम उसका प्रिपरेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसकी। हाँ सर। उसकी बुक भी आती है ना सर? हाँ, उसकी बुक भी आती है, बट उसकी बुक बहुत महंगी रहती है, आप किसी से रेफर कर लेना थोड़े दिनों के लिए। ठीक है ना। उसके बुक्स बहुत महंगे आते हैं, सीईटी 400 500 500 600 के बुक्स आते हैं। देखते हैं सर, अभी यूट्यूब से भी हो जाता है। हाँ, यूट्यूब पे वो यूट्यूब पे तो हर टॉपिक मिल जाता है, और आपको एक टॉपिक के 10 लेक्चर मिल जाएंगे उसमें, इसलिए उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी राइट नाउ की सिचुएशन अच्छी है, कहीं पे भी कुछ लगाना नहीं, बस हर टॉपिक को पर्टिकुलरली यूट्यूब पे पढ़ना, और उस वहां पे पढ़ के खुद के नोट्स बनाना। वो जो बताते हैं आगे पीछे कर करके, पीछे करके फिर से लिखना, पीछे करके फिर से लिखना। हाँ, वो हैबिट हो गई है सर, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में वैसे ही करती थी, अभी एग्जाम दे रही थी तो। तो वैसे ही करना, क्योंकि और ज्यादा कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, उससे कोई ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होती है, उसमें ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट क्या होती है, क्लियर होती है। अच्छा है वो यूट्यूब का, वो मिल जाते हैं, हर हर कंसेप्ट का मिल जाता है, न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल, रीजनिंग का,
एक बहुत अच्छा एक क्लासेस 9 क्लासेस करके यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, वो अच्छा पढ़ाते लॉजिकल रीजनिंग। 9 क्लासेस, NAV क्लासेस, 9 क्लासेस। वो अच्छे हैं पढ़ाने के लिए। तो ट्राई करो कि मतलब CET का अच्छा स्कोर हो और अच्छा कॉलेज मिले। हाँ सर। अच्छा कॉलेज मिल गया तो बहुत ही अच्छी लाइफ है। सोफिया का आया था मैसेज, सर बोले प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। आपको भी आया होगा ना? हाँ कॉल किए थे उसने। अब बात हुई? क्या बात हुई? पूछ रही थी कैसे करना है, कैसे टॉपिक निकालू करके। बताया आपने? फिर बोले नेट से देख, जो समझ में आए, जो अच्छा लगे वो टॉपिक चूज कर ली उसको। उसने भेजे थे मुझे 4-5, उसमें से मैंने एक टॉपिक बताया, बोला उसे ये टॉपिक अच्छा है, आप इस पे करो करके। 4-5 टॉपिक भेजे थे उसने। अच्छे टॉपिक भेजे थे उसने, बट उसमें से सिर्फ एक ही रिलेवेंट था, बाकी कुछ रिलेवेंट नहीं था। तो 1-2 टॉपिक आपने भेजा उस टॉपिक की जैसे ही था, परफॉर्मेंस वगैरह वगैरह। कॉम्पिटेटिव की वगैरह तैयारी नहीं कर रहे हो क्या? चालू है ना फिर एग्जाम देना। गवर्नमेंट की जगह ही नहीं निकल रही है। तो अभी इसका रेलवे का भरा था तो 2 साल बाद एग्जाम हुई उसकी। तो उसका एग्जाम हो गया और पोस्ट ऑफिस का निकला था 10 के बेसिक पे, वो वाला भरा है। अभी GDS निकला था अभी फिलहाल में। उसके एग्जाम नहीं थी, सिर्फ 10 के मार्कशीट के बेसिक थी वो। 2 वाला भरा है। 2 पेपर तो गए ऐसे, स्टाफ सिलेक्शन का और RBI का। तबीयत ठीक नहीं थी तो। और उसमें नहीं निकली जगह, वो आपके कोराडी पावर प्लांट है वहां पे? निकले सर, बट वो ITI मांग रही ना। ITI और अप्रेंटिसशिप वाले ले रहे। नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए नहीं निकलती क्या? सही से अभी नहीं निकले फिलहाल में, अभी ITI के बेसिक पर ही निकले थे। 59 लड़कियां समथिंग कुछ तो भी लगी ना अभी फिलहाल में, ITI के बेसिक पे। अरे वाह। 55 या 56 कुछ तो ही बता रहे थे पापा। अभी फिलहाल में लगी बोले लड़कियां। अरे वाह, अच्छा है फिर। वो ITI करना पूरा था। हाँ ना सर, पूरा टाइम ITI करना, जल्द से जल्द जॉब भी मिल जाती है। हाँ, अभी रेलवे में नई जगह निकली है 3000 वेस्टर्न रेलवे की, उसमें भी उन्होंने ITI मांगी है। हाँ ITI मांगे। ITI वालों की। बट बेटा क्या है, वो वर्कर ही बनना पड़ता ना, मजदूरी बनना पड़ता है। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, गवर्नमेंट जॉब मिल रही है। गवर्नमेंट जॉब मिल रही ना सर, गवर्नमेंट जॉब फिलहाल में कहाँ मिलती है। जॉब मिल रही है बाबा, गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, और क्या चाहिए।
रोहिणी को बता देना फोन करके कि कल क्लास में आना ही आना है करके, हम पढ़ना चालू कर देंगे वो बचा हुआ हमारा, फिर हो जाता है हमारा सिलेबस भी पढ़ना। ताकि अगर अभी आप थोड़ा थोड़ा टाइम अगर सीईटी के लिए भी निकाल दे पढ़ाई के लिए तो भी सफिशिएंट है ना आपसे। हाँ सर, लेकिन अभी प्रोजेक्ट का ही टेंशन आ गया है। हो जाता है उसका भी, और आपका मतलब बहुत अच्छी बात होती है कि हमारे लिए कि हमारा ये नहीं है तो कोई फीस वगैरह नहीं होती है। हाँ। सिर्फ आपको यूनिफॉर्म का खर्चा आएगा, जाने आने का खर्चा आएगा और बुक्स वगैरह खर्चा आएगा और 5,000 एक्स्ट्रा भरने पड़ते, बस उतना ही रहता है। मतलब 2 साल के आपको 10,000 भरने पड़ेंगे, बस वही रहता है। बाकी तो आपको जाने आने का, यूनिफॉर्म का खर्चा, बाकी कोई खर्चा नहीं और प्रोजेक्ट का खर्चा। ठीक है ना सर, अभी देखते सीईटी देके। हाँ, एमबीए के लिए मे भी पॉसिबल है कि आप दत्ता मेघे या डॉक्टर अंबेडकर मिल जाए। दो कॉलेज बहुत बेस्ट है। रामदेव बाबा भी है, रामदेव बाबा भी अच्छे प्लेसमेंट देता है, बट वहाँ का स्टडी कल्चर ही अलग ही है रामदेव बाबा का। बट अंबेडकर कॉलेज का बहुत अच्छा है और इसका भी बहुत अच्छा है, दत्ता मेघे का भी बहुत अच्छा है। वही सोची थी सर, अम्बेडकर का ही। दत्ता मेघे भी अच्छा है बेटा, दत्ता मेघे वो प्रताप नगर में दत्ता मेघे, उनका एक अलग से यही है, मतलब एमबीए का उनका अलग ही है, कॉलेज भी अलग ही बनाया उन्होंने। छोटा है, बड़ा है, मीडियम साइज का है कॉलेज, अच्छा है वो। वो भी अच्छा प्लेसमेंट देते हैं दत्ता मेघे। बाकी कॉलेज का तो इतना कुछ ये नहीं है, रोल कॉल नहीं है, बट देते हैं। जितने भी हमने टॉपिक बेटा आज तक किए वो सब समझे ना। हाँ सर। इजी टॉपिक है, इजी इजी टॉपिक है, कोई ये नहीं है प्रॉब्लमेटिक टॉपिक कोई भी नहीं था उसमें, या फिर ऐसा कोई टॉपिक नहीं था जो समझे नहीं। IHRM भी इजी था, टैलेंट मैनेजमेंट भी इजी था, और क्या आईबी आईबी तो इजी था ना, इंटरनेशनल बिजनेस। पर अगर आप कहीं भी स्टडी करते हो ना बेटा तो कंपैरेटिवली स्टडी करते जाओ। जैसे आईबी का अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आईबी का कंपैरिजन डोमेस्टिक बिजनेस के साथ करते जाओ, ताकि अगर आप कंपैरिजन करते हुए अगर सीखते हो या फिर कोई भी बात को रिकॉल करते हो तो जल्दी बातें समझ में आ जाती है। डोमेस्टिक कंपेयर करते जाओ इससे इंटरनेशनल बिजनेस से। और कुछ कुछ टर्म टर्म होते बेटा EHR के जो बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब एनालिसिस है, जॉब परफॉर्मेंस है, और जॉब स्पेसिफिकेशन है। हर इंटरव्यू में आपको ये सवाल पूछेंगे कि व्हाट इज जॉब डिस्क्रिप्शन, व्हाट इज जॉब स्पेसिफिकेशन, व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्राइजल। ये कुछ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो रट ही लो, अपने लाइफ के लिए रट लो। पूछते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है। अगर आप बोल रहे हो कि सर आई हैव डन माय प्रोजेक्ट इन HR, तो वो ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आते ही आते हैं बेटा, 100% आते हैं। वो आपसे हम अगर आप उनको HR बोलेंगे तो वो आपको 100% पूछेंगे कि बेटा जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन आपको शायद सेकंड ईयर में हुआ होगा HR में, तो वो बोलेंगे आपको जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, वो बोलेंगे आपको जॉब परफॉर्मेंस अप्राइजल क्या होता है, जॉब डिजाइन क्या होता है। ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। जैसे वेज सिस्टम है, वो भी अनदर ये है टॉपिक, अच्छा टॉपिक है वेज सिस्टम, मतलब सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अच्छे अच्छे टॉपिक होते हैं। HR में बहुत अच्छे जॉब मतलब मिलता है, अगर मिल गया ना तो बहुत अच्छा जॉब मिलता है HR में। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट वैकेंसीज नहीं निकलती MBA के बेसिस पे, गवर्नमेंट वैकेंसीज भी निकलती है MBA के बेसिस पे।
बीच में वो बैंक में SBI में रिलेशनशिप मैनेजर निकला था MBA के लिए, डायरेक्ट इंटरव्यू था। ठीक है बेटा, फिर कोई है नहीं तो फिर अभी, बट रोहिणी को बताई ना कल कि आना ही है करके, ठीक है लेक्चर में। हाँ सर। ठीक है बेटा।